Good morning, everyone. Government College Patharia. Am I audible, sir? Government College Patharia द्वारा इस 7 days FDP प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस FDP कार्यक्रम जिसका टाइटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड पेडागोजिकल टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग है, आज इस FDP का 3rd डे है। इस FDP के 3rd डे में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत सोनी इस FDP की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों में आप लोगों का भरपूर सहयोग इस FDP के लिए मिला और उम्मीद करता हूं कि आज और आगे आने वाले दिनों में भी आप लोगों का साथ यूं ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मिलता रहेगा और यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल होते हुए पूर्णतः सफल रहेगा। आज इस FDP का 3rd डे जो फर्स्ट सेशन में लेक्चर होने वाला है वो डॉक्टर विट्ठल गोरे सर का है, जो लातूर महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं और विलंब न करते हुए महाविद्यालय परिवार की सदस्य डॉक्टर खुदैजा परवीन अंसारी मैडम को इनवाइट करूंगा कि मैडम आप आए और हमारे ऑडियंस के सामने डॉक्टर विट्ठल गोरे सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखें। डॉक्टर खुदैजा परवीन अंसारी मैम। Thank you so much, sir. In the first session of this 3rd day of this faculty development program, I, Dr. Khudaija Parveen Ansari, RTK, welcome to all of you on behalf of Government College Patharia. Today we have the first resource person of the session, Dr. B.G. Gore, Assistant Professor and HOD, Department of English, Shri Hawaji Swami College, Udgir, Latur, Maharashtra. Sir, welcome to the FDP program. I am starting a program with a brief intro of Sir Eminent from SRT, MUN, MPhil from MKU and PhD from Osmania University, Hyderabad. Sir received international certification as a rater for GRE, TOEF from ETS, USA, India Limited. He is professional English teacher certified by Cambridge University, UK. Sir is teaching English, literature, communication skill, and phonetics since 1997, as well as he is research supervisor in English and under you one scholar submitted PhD thesis and 3 are pursuing. Sir is research associate UGC IUC Indian Institute of Advanced Study Shimla, as well as you are chairman seminar committee for English literature. Wisdom Speaks UGC Care General Kolkata. Sir also formal member BOS syllabus committee for English SRT MUN nominated by Honorable VC sponsored UGC e-content development program. Telecast of selected video lecture on Vyas TV, Language and Literature Channel by Government of India. Swayam portal developed e-content of 173 topics based on SRT MUN syllabus of English compulsory and optional subject. Sir has presented 94 topics so far as resource person for UGC HRDC conference, seminar, and short-term course. He is editor of several national and international research journal and newsletters. Sir is also successful NAC and IQAC coordinator, as well as NSS program officer from 2022-23 onwards. With a brief intro, I want to invite Sir. Over to you, sir.
Okay, thank you, madam. Am I clearly audible? Hello? Yes, sir. Am I visible also? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So first of all, I would like to congratulate Government College Pathria for organizing this 7-day online faculty development program on personality development and advanced pedagogical techniques. The convener of this event, the coordinators, the organizing secretaries, and all the participants for this session today. So first of all, I must congratulate the organizing committee for taking up this very important issue for discussion today. The organizers have assigned me a very interesting topic, which is titled as Teaching with Technology and Innovative Modern Pedagogy. Friends, for another 1 hour or so, you will come to know about several aspects which are related to teaching and learning as a whole. तो दोस्तों, आने वाले 50 मिनट में आप टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, पेडागोजी के बारे में कई सारी नई चीजें, और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ज्ञात भी हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन मेनली इन सब पॉइंट्स पर फोकस्ड होगा। जहां तक आपको पता है कि हम जब भी एजुकेशन में अपना अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वो विद्यार्थी के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में हो, या फिर एज ए होल हम जो भी अपने लाइफ में मेंटरिंग करते हैं, उस दौरान हम कई सारी चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजर ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बात करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि आने वाले दौर में ये एजुकेशनल पैराडाइम जो है किस तरह से बदलता गया है। क्योंकि जब हम विद्यार्थी थे, आपको तो पता ही है कि टिपिकल ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड के दौरान हम कई सारे शिक्षकों को हमने अपने सामने पाया। उनकी टीचिंग एबिलिटी, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, उनके विषय के प्रति जो लगाव था, उनकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज थी, उसका आविष्कार हमने फॉर्मल एजुकेशन के पहले दिन से लेकर फिर हमने भले ही पीजी तक हो, एमफिल, पीएचडी तक हो, जो भी हमने अपना मतलब एजुकेशन पूरा किया, उस दौरान हमने पाया कि मोस्टली हमारे शिक्षक हमारे सामने ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड लेकर आया करते थे। साथ ही साथ हमने ये भी पाया कि जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो, या फिर जैसे महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी हो, इस तरह का एक ओपन एजुकेशन सिस्टम भी हमने अपने दौर में देखा। साथ साथ उसकी अगली पायदान पर हमने देखा कि डिस्टेंस लर्निंग का एक मौका हमें मिला। कई सारे अध्यापक शायद उन्होंने
एमफिल या कोई और कोर्सेस डिस्टेंस मोड से किए हो। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 सालों से हमने और एक दौर देखा है एजुकेशन का, क्योंकि जिस तरह से हम अब आभासी तौर पर जुड़े हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, जूम प्लेटफॉर्म के जरिए से जुड़े हैं, इसी तरह से हमने कोरोना के दौरान जो भी हमारा 1-1.5 साल उसमें व्यस्त हो गया, हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन देने का प्रयास किया। और ऑफ कोर्स उसमें स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर पाम टॉप्स हो, एज ए होल अगर कहा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने अपने विषय को विद्यार्थियों तक पहुंचाया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आपको तो पता ही है, चंद महीने पहले यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें कहा गया है कि अब आने वाला दौर जो होगा ब्लेंडेड एजुकेशनल सिस्टम का होगा। माने ट्रेडिशनल तरीके से भी बच्चे सीखेंगे और डिजिटल तरीके से या फिर ऑनलाइन मोड में भी बच्चे सीखेंगे, और उसको हमने एक ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम कहा। साथ साथ ई लर्निंग को आज तक मतलब लीगल नहीं माना गया था। हम कई सारे कोर्सेज करते थे ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन आप जो भी अब क्रेडिट्स अर्न करेंगे ई लर्निंग के माध्यम से, मतलब मूक कोर्सेज जैसे है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के जरिए से, अब उस तरह के कोर्सेज को भी वैलिड माना जाएगा या लेजिबल माना जाएगा। और अब जो आने वाला वक्त है वह है वर्चुअल लर्निंग कैंपस। मतलब ना विद्यार्थी कभी कॉलेज, क्लास या कैंपस में जाएगा, ना ही उसको वहां जाने की जरूरत होगी, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली मतलब आभासी तौर पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा और बच्चे सीखेंगे भी, डिग्रियां भी पाएंगे और उसी डिग्री के आधार पर नौकरियां या व्यवसाय भी करेंगे। और आपको तो पता ही है कि कई सारी आईआईटीज है, आईआईएम है, जिन्होंने अपने प्योरली ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। मतलब आने वाला जो एजुकेशनल दौर होगा वह होगा वर्चुअल लर्निंग कैंपस का। तो ये रहा आज का स्टेटस, क्योंकि ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड से लेकर वर्चुअल लर्निंग कैंपस के दौर तक हम अब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इस दौर में जहां पर ब्लेंडेड लर्निंग होगी, क्योंकि हम जहां पर पढ़ाते हैं या कई सारे स्टूडेंट जो हमारे आपके कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यहां पर लर्निंग लेक्चर यानी ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड को भी अडॉप्ट किया जाएगा, जो कि परंपरागत तौर पर चली आ रही है सालों से, और साथ में ही ई लर्निंग का भी या फिर वर्चुअल लर्निंग टीचिंग का भी आधार यहां पर लिया जाएगा। तो इस तरह के माहौल में हम अब आ चुके हैं, और इसीलिए आज का जो चर्चा का विषय हमें या आपको दिया गया है वह है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल पेडागोजी। दोस्तों, आपको तो पता ही है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, कि हम एक सिंक्रोनस मेथड से गुजर चुके हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड या टीचिंग लर्निंग मेथड कहेंगे, जिसमें आपके सामने या मेरे सामने एक क्लास होता है, क्लासरूम होता है, वहां पर एक अध्यापक होता है और अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो उस स्पेस में, लिमिटेड टाइम में स्टूडेंट का टीचर का इंटरैक्शन होता है, और उसी को हम एक सिंक्रोनस मेथड ऑफ लर्निंग या फिर एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग कहें। उसके साथ साथ इस दौरान क्या हुआ कि कई सारे बदलाव हमारे सिस्टम में आए, भले ही वो डिस्टेंस लर्निंग हो, ओपन लर्निंग हो,
लेकिन डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचता रहा। ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचता रहा, उनके कौशलों का विकास हमने किया। लेकिन आज का जो दौर है वह है हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग मेथड। हाइब्रिड माने, जैसे आपको पता है, कई सारे अध्यापक हो सकता है कि कृषि वर्ग से आते हो, तो हाइब्रिड का मतलब वो अच्छे से जानते हैं। यहां पर हाइब्रिड माने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, यानी सिंक्रोनस मेथड का भी इस्तेमाल करना है और असिंक्रोनस मेथड का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां पर आप आधुनिक तंत्रज्ञान हो, साथ साथ पारंपरिक ज्ञान की देने की या लेने की परंपरा हो, उसको हम साथ में जोड़ते हैं। और इसके पीछे मकसद यह होता है कि इट एक्चुअली मोटिवेट्स द लर्निंग प्रोसेस इन द व्यूज ऑफ ए लर्नर। क्योंकि जब हमारे सामने विद्यार्थीगण बैठते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद और ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करने के बाद, जब हम दोनों तरीके से, दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके हम ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे या फिर कौशल्य विकास करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा हमारे स्टूडेंट्स को, आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। साथ साथ कई संदिग्ध संकल्पनाएं होती हैं जिसे हम एम्बिग्युअस कंसेप्ट्स कहते हैं, उसको डिफाइन करने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। तो इसलिए एजुकेशन के इस दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा किया जाए और कैसे कैसे आज की हालत में हो रहा है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे इस स्लाइड में आपके सामने एक चित्र आएगा। इस चित्र में आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो लर्नर है, उसके इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी का एक प्रभाव आप देखिए। भले ही वो ऑनलाइन इंक्वायरी हो या काउंसलिंग हो, किसी विषय के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, या फिर संबंधित शिक्षा के लिए आवेदन करना हो, जिसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहेंगे, साथ साथ ऑनलाइन एडमिशन की फी पेमेंट की व्यवस्था हो, उसके साथ ही लर्निंग पाथ या एनालिसिस हो, डिजिटल कंटेंट एक्सेस एंड डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट हो। अगर आप इस चित्र के या फिर इस विद्यार्थी के इर्द गिर्द देखेंगे तो शुरुआत से लेकर डिग्री पाने तक हर प्रकार की जो प्रक्रिया होती है एजुकेशन की, उसमें आपको टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। और इसका एक रीजन ऑब्वियस है। दिस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन has actually become very powerful tool in order to transform the entire educational scenario, not only in India but all over the world. क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल पूरे सिस्टम में किया जाने लगा है, तो इसका एक सकारात्मक असर या प्रभाव निश्चित तौर पर पढ़ने वाले विद्यार्थीगण और पढ़ाने वाले शिक्षकगण और ये पूरा जो सिस्टम चलता है एजुकेशन का, उस पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है। और यह स्लाइड आपको एक इमेज देगी, एक पिक्चर और इंप्रेशन देगी कि किस तरह से लर्निंग क्षेत्र में या फिर इस पेडागोजी के क्षेत्र में तंत्र ज्ञान का या टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है। चलिए हम समझते हैं कि ऐसे कौन से टेक्नोलॉजिकल टूल्स है जिसका इस्तेमाल आज के दौर में आपको और हमें शिक्षा देते समय या शिक्षा लेते समय, किसी भी रोल में हो, वेदर यू आर इन द रोल ऑफ ए लर्नर और यू आर इन द रोल ऑफ ए टीचर, किसी भी रोल में हो, निश्चित तौर पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या टूल्स का इस्तेमाल हमें प्रभावी ढंग से करना होगा। इसके बगैर हम कहीं जा नहीं सकते। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ टूल्स हैं। और हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के, शायद इनमें से कई टूल्स के बारे में जानते भी होंगे
और निश्चित तौर पर मैं बड़े विश्वास से कहना चाहूंगा कि इसमें से कई सारे टूल्स उसका इस्तेमाल उन्होंने खासकर कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अपने शिक्षा को प्रचार और प्रसारित करने के लिए किया। जहां तक ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल हो, जैसे अभी अभी देखिए आप, मैं भी आपके साथ आभासी रूप में जुड़ा हूं, यानी जूम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देयर इज द ऑर्गेनाइजर जिन्होंने एक एफडीपी ऑर्गेनाइज किया। आप सभी अपने अपने महाविद्यालय से, अपने अपने घर से, या फिर जहां भी आप हो, वर्चुअली आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और इस तरह का एजुकेशन, इस तरह का ऑनलाइन एफडीपी पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। फिर वो गूगल मीट हो, जूम प्लेटफॉर्म हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, स्काइपे हो, या फिर और कोई कई सारे प्लेटफॉर्म इस कोरोना के दौरान टेक्नोलॉजी के साथ हमारे घर पर पहुंचे हैं। फिर वो मोबाइल के जरिए से हो, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए से हो। लेकिन इसका आधार एक ही है, इसका आधार है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो हमें अलग अलग जगह पर होते हुए भी वास्तव में आभासी तौर पर हमें जुड़े रखती है। साथ में ही हम सोशल मीडिया का भी आधार लेते हैं, मदद लेते हैं। फिर वो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक का आपका वहां पर फेस हो या अकाउंट हो, या फिर प्रोफेशनल कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए लिंक्डइन हो। इस तरह से कई सारे सोशल मीडिया के चैनल्स अवेलेबल हैं। जैसे सोनी सर ने मुझे इस प्रोग्राम की लिंक भेजी, व्हाट्सएप के जरिए मेरे पास वो लिंक आ गई। मैंने अपने कंप्यूटर में उसको ओपन किया और उसके थ्रू मैं आपसे जुड़ा। मतलब कहने का मकसद यह है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया का हम मैसेजिंग सिस्टम डेवलप करते करते उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वेरी क्विकली हम किसी एक व्यक्ति से या अनेक व्यक्तियों से एक साथ एक ही स्ट्रोक में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसी तरह के टेक्नो टूल्स का इस्तेमाल हम एजुकेशन देने के लिए और एजुकेशन लेने के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। साथ में आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो टूल्स है उसका इस्तेमाल हमने सीखा है। शायद हमसे भी ज्यादा जब हमारे बच्चे भले वो एलकेजी यूकेजी से लेकर यूनिवर्सिटी डिग्रीज तक वो पढ़ रहे हैं, तो उनको अडोब का इस्तेमाल, जी स्वीट का इस्तेमाल, एमएस ऑफिस का इस्तेमाल, साथ साथ वन ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल या एवरनोट का इस्तेमाल, उसके बगैर उनका एक दिन भी एजुकेशन का नहीं जा पाया। इसका मतलब यह है कि पीडीएफ कन्वर्जन के लिए या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट के लिए या किसी भी तरह का आभासी जो कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर है वन पर्सन टू अनदर पर्सन या मेनी पर्सन्स, ये करने के लिए हमें इस तरह के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और अभी भी हम कर रहे हैं और आने वाले दौर में भी हमें करना होगा। उसको छोड़कर आप आज कहीं नहीं जा सकते। साथ साथ आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन वीडियो टूल्स भी उपलब्ध है। अब YouTube का इस्तेमाल आज भी होता है, कल भी हो रहा था और भविष्य में भी होगा। और खासकर YouTube के कई सारे वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारा ई कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। खासकर वीडियो के रूप में अगर आपको देखना है तो वो गूगल का YouTube हो या फिर लूम प्लेटफॉर्म हो, यहां पर आपको ढेर सारे वीडियोस, लाखों करोड़ों वीडियोस आपको अलग अलग विषय पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब यह है कि ये जो ऑनलाइन टेक्नो टूल्स है, फिर वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स हो, सोशल मीडिया चैनल्स हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल्स हो या फिर ऑनलाइन वीडियो टूल्स हो, साथ साथ हमारा जो वर्क चलता है, डे टू डे हम अपना काम करते हैं। जैसे हम अगर फिजिकली कॉलेज में उपलब्ध है, वहां पर टाइम टेबल लगा होता है,
और बरोबर हम हर एक क्लास अपने वक्त के हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन इसी तरह की अगर आपको ऑनलाइन प्लानिंग करनी है तो ऑनलाइन प्लानिंग टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि गूगल कैलेंडर हो या फिर कैलेंडली हो। इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके हम 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, पूरे माह का या फिर कई सारे सेमेस्टर्स या साल का एडवांस प्लानिंग गूगल कैलेंडर या कैलेंडली में कर सकते हैं। साथ साथ आपको पता ही है कि गूगल फॉर्म, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल फॉर्म सबमिट किया, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजर के पास वर्चुअली पहुंच चुकी है। आपको किसी कागज पर लिखकर आपकी स्वाक्षरी करके सबमिट करने की या पोस्ट के थ्रू भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्विज बनाने के लिए हो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हो, इंफॉर्मेशन देने के लिए हो, हम सकारात्मक तौर पर करते जा रहे हैं और करना होगा। साथ साथ इस टेक्नो टूल्स के तहत प्रोजेक्ट हो, थिंक लिंक हो, उसके साथ साथ टेड एजुकेशन हो, एजू क्लिपर हो, स्टोरी बर्ड हो, एनिमोटो हो, यानी इस तरह के मैं आपको एक बहुत बड़ी यादी प्रस्तुत कर सकता हूं, एक लिस्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, जिस तरह के टेक्नो टूल्स का इस्तेमाल करके आज का एजुकेशन हम प्रभावित तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, एक टीचर के तौर पर मैं जब विचार करता हूं कि यह जो एजुकेशनल सिस्टम बन रहा है या बन चुका है, फिर वो टोटली वर्चुअल एजुकेशनल सिस्टम हो या फिर जो हाइब्रिड एजुकेशनल सिस्टम हो, जहां पर ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके पढ़ाने का जो तरीका है वह हो, इसमें एक बड़ा रोल आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ने प्रस्तुत किया। अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, आपको मतलब जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो गूगल क्लासरूम हो, मूडल हो, एडमोडो हो, टीचमेंट हो, ब्लैक बोर्ड हो, क्लासरूम 2.0 हो, दोस्तों ये सभी जो टूल्स है, ये सभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है, एक शिक्षक को वर्चुअल मतलब आभासी तौर पर सक्षम करने के लिए बने हुए टूल्स। अब इसमें से कई सारे टूल्स का इस्तेमाल आपने भी किया है, मैंने भी किया है, खासकर मैं टीचमेंट हो, गूगल क्लासरूम हो या मूडल हो, इसका बड़ा भक्त रहा हूं, या ब्लैक बोर्ड हो, इसको मैंने लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल किया है, आज भी इस्तेमाल करता हूं। और इसका प्रभावी इस्तेमाल अगर एक शिक्षक सीख ले तो निश्चित तौर पर यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक टेक्नोलॉजिकल टूल के तौर पर आपको इतनी मदद करेगा कि एक हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग देने वाला सक्षम शिक्षक के रूप में आपकी प्रस्तुति विद्यार्थियों के समक्ष कर देगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इफ यू रियली यूज all these learning management system platforms, or you can be choosy also, just select one of them, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, गूगल क्लासरूम और टीचमेंट ये दोनों सच में, इसमें उसमें मुझे कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक एक शिक्षक के रूप में मैंने जब इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बहुत ही हैंडी टूल्स लगे। फिर वो टीचमेंट आपको ई कंटेंट भी बनाता जाएगा, आपके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड भी करता जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए वो कभी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगे। साथ साथ आपका टाइम टेबल जैसा आप मैन्युअली बनाते हो, उस तरह का एक टीचमेंट के अंदर आप टाइम टेबल बनवा सकते हो। स्टूडेंट्स बराबर आप जिस ग्रुप को बनाया है उसी ग्रुप तक मैसेज जाएगा, उनके आप टेस्ट ले सकते हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, रूब्रिक्स बन जाता है जैसे गूगल क्लासरूम में बनता है। मतलब इसमें से कोई भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नो टूल के तौर पर आपने अगर स्वीकार कर लिया या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सभी टेक्नो टूल्स बहुत ही प्रभावी तरीके से हम क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर और आप जहां है वहां से इन चीजों का, इन टेक्नो टूल्स का इस्तेमाल निश्चित तौर पर वहां पर आप कर सकते हो। साथ साथ आपको यह भी देखना होगा
कि आप हो, हम हो, या आपके स्टूडेंट्स हो या हमारे स्टूडेंट्स, हमें ब्लॉगिंग की तरफ, ब्लॉगिंग या कई सारे शिक्षकों का ब्लॉग होगा, कुछ स्टूडेंट्स भी अपना ब्लॉग बनवा लेते हैं। पहले समझ लीजिए ब्लॉग होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। एक्चुअली अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट। अब खैर हमने क्या एक वेब पोर्टल लेकर अपना खुद का वेबसाइट का स्पेस नहीं बना, लेकिन जो भी रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स है जो ब्लॉग्स बनाते हैं, blogspot.com हो या blogs.com हो, वहां पर जाकर फ्री में आप आपकी वेबसाइट के जैसा आपका एक वेब पेज बना सकते हो। और इसका पर्पस यह होता है कि जो भी व्यक्ति अपना ब्लॉग आईडी बनाता है उसको हम ब्लॉगर कहते हैं। और ब्लॉगर का पर्पस क्या है? ब्लॉगर का पर्पस है कि आपके जो अनुभव है, आपके ओपिनियंस है, आपके ढेर सारे आइडियाज है, आपके एक्सपीरियंसेस, इन चीजों को अगर आपको दुनिया के सामने रखना है, फिर वो चित्र के रूप में हो, एक डिस्क्रिप्शन के रूप में हो, किसी वीडियो के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर आपको रखना है, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो आपको शायद एक ब्लॉग पेज आपका ओपन करना चाहिए, तब आपको ब्लॉगर कहा जाएगा। और ब्लॉगर बनने के बाद आपकी जो एक डायरी है, जैसे आप पर्सनली डायरी मेंटेन करते हो, उस तरह से आप आपके विचार, आपके अनुभव वहां पर व्यक्त कर सकते हो। और साथ में ही आपको ढेर सारे लाइक्स भी मिलेंगे, आपको सुनने वाले, आपको पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। इस तरह के अगर हम कोई टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसका फायदा यह होता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, आपको लिखित तौर पर आपके विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, और उस तरह से आप अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। कई बार होता क्या है, आपके पास बहुत कुछ है बताने जैसा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आप अगर ब्लॉगर बन जाए तो निश्चित तौर पर दुनिया आपको नोटिस भी करेगी और आपको सुनेगी भी और देखेगी भी। इसलिए एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ब्लॉग का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रभावी टेक्नो टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ साथ हमें अब हम दूसरे एक विषय पर बात करेंगे, जिसे हम पॉडकास्ट इन क्लासरूम कहते हैं। एक्चुअली ये पॉडकास्ट का इस्तेमाल अभी इंडियन एजुकेशनल सिनेरियो में मतलब बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। अभी भी ये क्लासरूम के अंदर आना बाकी है। लेकिन अगर आप सोचे कि टेक्नोलॉजिकली आपको किसी तरह का ई कंटेंट बनवाना है, तो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ यूजिंग पॉडकास्ट। अब यह जो पॉडकास्ट है, यह एक्चुअली आपका ऑडियो कंटेंट प्रोसेस करेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वीडियो को, इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा, और शायद आप जो भी आज जुड़े हैं 50, 60, 70 जो भी लोग हैं, तकरीबन 90 लोग जुड़े हैं, 90 लोगों तक मैं पहुंच पाया। लेकिन अगर इसी को रिकॉर्ड कर हमने अपने पॉडकास्ट चैनल पर रख दिया, तो आने वाली कई पीढ़ियां, हम रहे ना रहे, हमारा पॉडकास्ट जीवित रहेगा, और वह विचार जो प्रस्तुत किए हैं वो दुनिया भर में अपने आप प्रसारित होते रहेंगे। जिसको भी इस टॉपिक पर सुनना है वह ये पॉडकास्ट सुन लेगा, या फिर इसी का ई कंटेंट के रूप में हमने रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पर रख दिया, वहां पर भी ये चलता रहेगा। मतलब पॉडकास्ट को हम क्लासरूम में लाना चाहिए। आपको तो पता ही है कि कई बार हम जब अपने क्या लिखने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग से आइडियाज नहीं आते, लेकिन जब आप एक शिक्षक के रूप में क्लास में खड़े होते हो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कई सारी इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज आती है, और वेरी स्पॉन्टेनियसली यू कीप ऑन टेलिंग, यू कीप ऑन एक्सप्रेस। अगर आप इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दे आपके वॉइस रिकॉर्डर में, तो निश्चित तौर पर आपका एक पॉडकास्ट का चैनल डेवलप होता जाएगा, और आपके ये सृजनात्मक जो विचार है वह भी दुनिया तक पहुंचते रहेंगे। ये एक्चुअली स्टूडेंट को फोकस करने के लिए मदद करता है। आपका ऑडियो कंटेंट डिजाइन होना शुरू हो जाता है, साथ साथ आपकी जो संकल्पनाएं हैं, विचार है,
लोगों तक पहुंचते हैं, लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से अगर कुछ विलक्षण प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर किसी का भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इसका इस्तेमाल करके उसका फायदा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट में अगर बताने की कोशिश करूं तो यह जो पॉडकास्ट है, विविध विषयों पर आपके विचार डिजिटली दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए आप निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर ना कि ओनली टीचर बट आई वुड से स्टूडेंट्स भी अगर इसका इस्तेमाल करें और अपने विचार, मौलिक विचार ऑडियो में रिकॉर्ड कर पॉडकास्ट पेज टू पेज आपके पेज के ऊपर अगर आपने प्रस्तुत कर दिया तो निश्चित तौर पर आपको सुनने वालों की मतलब तादाद वहां पर बढ़ जाएगी और साथ साथ आपके जो क्रिएटिव इनोवेटिव विचार है वह भी विचार किसी डिजिटल रूप में सेव हो जाएंगे। कई बार होता क्या है, हमने जो कह दिया तो कह दिया, बाद में याद करने की कोशिश करने के बाद भी हमें याद नहीं आता। लेकिन अगर आपका वही क्लास पॉडकास्ट के रूप में रिकॉर्ड हो चुका है तो उस तरह की पूरी आइडियाज को आप री-लिसन करके या फिर से आप उसको सुनकर उसका इस्तेमाल आपके रिसर्च एक्टिविटीज के लिए कर सकते हो। साथ साथ हमें सोशल मीडिया का भी आज इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको तो पता ही आजकल लोगों का मैक्सिमम टाइम अगर कहाँ व्यस्त होता है, अब उसका व्यय होता है या अपव्यय होता है, आप आपका डेफिनेशन बनवा लीजिए। वो होता है फिर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे एक्चुअली कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ आइकॉन आपके स्क्रीन पर रखे है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दौर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो आप सोशल मीडिया को अलग नहीं रख सकते। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझ तक इस आभासी व्याख्यान की लिंक व्हाट्सएप थ्रू मिली। अब व्हाट्सएप अगर आप चाहे तो प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप आप अगर चाहे तो दोस्तों के बीच इनफॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिलेटिव्स के बीच इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं, नो डाउट देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड देयर आर सो मेनी इनफॉर्मल ग्रुप्स आल्सो लाइक अमंग द रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स। मतलब दोस्तों, फिर वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर लिंक्डइन हो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म हो, ढेर सारे प्लेटफॉर्म है। कुछ आइकॉन मैंने आपके लिए स्क्रीन पर रखे। इसका इस्तेमाल हमें एजुकेशन के लिए करना होगा क्योंकि जो आज की पीढ़ी है ऑलरेडी इन चीजों से अकस्टम्ड है। वह आपको क्लासरूम में देखने की बजाय आपका स्टेटस वो व्हाट्सएप पर देखना पसंद करती है। वह आपको क्लास में सुनने की बजाय वह आपको वीडियो के रूप में यूट्यूब पर सुनना पसंद करती है। तो अगर यह पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी या चालू पीढ़ी अगर ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुकी है तो शायद शिक्षक के रूप में हमारी भी एक प्रतिबद्धता बनती है कि हमें भी इसके दौर में उतरकर या जो भी प्रवाह चल रहा है उसमें उतरकर हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उसे अगर हमने एजुकेशन के लिए प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर यह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर लिंक्डइन हो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म हो, इसको हम शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज, योर इंटरेस्ट, different sorts of data collection, so on and so on, you can do it in the very very virtual form with the help of social media. आप अगर सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होंगे, सोचिए आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गए इसका मतलब आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है कि हमें किसी न किसी रूप में प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो इन चीजों से जुड़कर रहना होता है। और यह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी हमें इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारा एजुकेशन डे बाय डे रेलेवेंट हो। 21st सेंचुरी के हमने ऑलरेडी 2 डिकेड कंप्लीट कर दिए, तीसरे डिकेड के तीसरे साल में हम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इन सब चीजों को अडॉप्ट करने के बाद इसका प्रभावी इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए हमें करना होगा और उनके लिए नए नए आयाम, नए नए प्लेटफॉर्म हमें बनाने होंगे। साथ साथ ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में इसका एक बार मतलब वक्तव्य किया था, क्योंकि द यूज ऑफ जूम, मीट, टीम एटसेट्रा फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड वेबिनार्स। अब आपको तो पता है ये जो प्रस्तुत कोर्स है
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 1 वीक. दिस इज द ऑनलाइन प्रोग्राम. मतलब रोज जितने भी सेशंस यहां पर लिए जाएंगे, ऑनलाइन तरीके से आप सभी मतलब पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे और ऑनलाइन आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसका मतलब हमारा अस्तित्व यहां पर वर्चुअल है, आभासी है. हम प्रत्यक्ष रूप में कहीं पर नहीं जा रहे. मध्य प्रदेश में जाकर इस गांव में या शहर में हम नहीं जाएंगे, हम वर्चुअली जुड़े हैं. तो इसलिए हमें जूम हो, गूगल मीट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, इसका अभी इस्तेमाल करना आना चाहिए. अब कई सारे टीचर्स आज भी ऐसे हैं जो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाते. फिर वह स्लाइड शेयर करने के लिए हो, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हो, अटेंडेंस लेने के लिए हो, या खुद के वीडियो डेवलप करने के लिए हो, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए हो. एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप ढेर सारा ई कंटेंट डेवलप कर सकते हो. मुझे फक्र होगा आपको सबको बताने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान मैंने 176 मतलब 176 ई कंटेंट को डेवलप किया है, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी ने बीए बीकॉम बीएससी के लिए जो प्रोग्राम लगाया है, फिर वो कंपलसरी इंग्लिश का हो, ऑप्शनल इंग्लिश का हो, जितने भी पेपर टीचर के तौर पर मैं पढ़ाता हूं, पूरा की पूरा कंटेंट मैंने ई कंटेंट के रूप में प्रस्तुत किया है. क्योंकि जितने भी लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन दिए उसको मैं रिकॉर्ड करता गया. रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैंने कुछ स्लाइड्स शेयर किए, उसको भी मैंने उसमें इंडक्ट किया. कुछ ऑडियो वीडियोस वर्चुअली पूरा डेवलप करने के बाद वह मैंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखा, जिसका नाम है डॉक्टर विट्ठल गोरे वर्चुअल लर्निंग. वर्चुअल लर्निंग नाम का मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और आज तक 1 लाख के ऊपर उसके व्यू हो चुके हैं. तो दोस्तों, इस तरह से आप जूम का, मीट का, टीम का या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेस का या टूल्स का इस्तेमाल करके आप लोगों से जुड़ सकते हो, अपने विचार वहां तक पहुंचा सकते हो. और मैंने फिर वह सिलसिला बंद नहीं किया. जितने भी मैं तकरीबन आज तक मैं, दिस इज माय 95th प्रेजेंटेशन एज ए टीचर, एज ए रिसोर्स पर्सन. जब से मैं शिक्षक बना हूं तब से मैंने आज तक 95 प्रेजेंटेशन दिए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या HRDCs में. आज का जो प्रेजेंटेशन है वो 95th. इसमें से कई सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए. ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जैसे भी मतलब पॉसिबल है उस तरह से रिकॉर्ड करके उसको वीडियो यूट्यूब चैनल पर रखता हूं, ताकि जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं वहां तक ही ना पहुंचे, इसके आगे जाकर हम दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए वहां पर उसे रखा जाता है. मतलब पर्पस यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इन सभी प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी इस्तेमाल करना सीखे तो निश्चित तौर पर आपका जो मतलब कंटेंट है वो ई कंटेंट बनता जाएगा और आप दुनिया में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे डेवलपर के रूप में, फिर वर्चुअल कंटेंट डेवलपर कहेंगे आप उसको, उस रूप में आप दुनिया के सामने जाएंगे. अब ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर खाली वर्चुअल मीटिंग नहीं होती, यहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम किसी को फोन कॉल कर सकते हैं, कई सारे लोग एट ए टाइम यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके हम कुछ चीजें जैसे क्लास में बताते हैं वैसे बता सकते हैं. हम यहाँ पर स्लाइड शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस शेयर कर सकते हैं. मेरी स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है वह मैं आपको वहां पर पहुंचा सकता हूं. साथ साथ ईमेल और कैलेंडर का इस्तेमाल करके ये जो वर्चुअल मतलब इंटेलिजेंस है या VI कहते हैं आप इसको, इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया तक पहुंच रहे हैं. मतलब इसका प्रभावी इस्तेमाल अगर आप एजुकेशन के दौर में करें, वेबिनार ले, क्लासेस ले, स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड बनवाए, सब चीजें अगर आप टेक्नोलॉजिकली करना शुरू कर दे तो इसी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके प्रभावी शिक्षक के रूप में हम दुनिया के सामने आ सकते हैं. साथ साथ ऐसे कई सारे मतलब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग टूल्स हैं, जैसे काहूट हो या एवरनोट. अब ये दोनों भी टूल्स सच में बहुत प्रभावी है. अगर आप एक बार काहूट को इंस्टॉल कर ले या फिर उसके मेंबर बनकर आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया या फिर एवरनोट का इस्तेमाल करना शुरू किया, होता क्या है, काहूट के रूप में आप क्लास ले सकते हो, लाइव क्लास ले सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप जुड़ सकते हो, स्टूडेंट्स के आप क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हो, उनको आप टाइप्ड कंटेंट बनवाकर प्रश्न दे सकते हो, उसके आंसर आपके काहूट के प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, आपके पास में आ जाएंगे.
उसके साथ साथ आप छोटे मोटे क्विज बना सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज बना सकते हो, ऑनलाइन आप टेस्ट ले सकते हो। स्टूडेंट्स का अटेंशन आपकी तरफ रहने के लिए आप अगर इस तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करें और प्रभावी इस्तेमाल करके साथ साथ आप वर्चुअल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले रहे हो, खुद को भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, स्टूडेंट से सामने आमने सामने आकर भी और कभी कभी वर्चुअली आमने सामने आकर भी आप स्टूडेंट से जब आप जुड़े रहते हो तो निश्चित तौर पर आप जो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हो या फिर कौशल्य विकास करना चाहते हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप प्रभावी तौर पर स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हो। साथ साथ ये एवरनोट भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिल जाएगा, साथ साथ आप स्टूडेंट से जुड़े रहेंगे। कैलेंडर के रूप में वहां पर आप कई सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। मोबाइल आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वहां पर जो नोट्स है उस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारी चीजें वहां पर वीडियो है, ऑडियो है, डेटा कंटेंट है, पीडीएफ है या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी आप स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर सकते हो। लार्जर मतलब नोट्स है, आपके ढेर सारे नोट्स है 30, 40, 50, 100 पेजेस के, उसको भी आप स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर सकते हो। बिजनेस कार्ड्स को वहां पर जैसे आप स्कैन करते हैं उस तरह के स्टूडेंट्स अगर कोई एक्टिविटी करते हैं वहीं पर स्कैन करके वहीं पर आपको भेजा जा सकता है, या फिर आप उसको करेक्ट करने के बाद स्टूडेंट को भेज सकते हो। पीडीएफ के एनोटेशंस बना सकते हो। मतलब इन ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल अगर हम प्रभावी ढंग से करना शुरू करें तो निश्चित तौर पर यह ऑनलाइन टूल्स आपके आज के मतलब शिक्षा देने के और लेने के रूप में बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ साथ आपको यहां पर और एक चीज समझनी होगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर कैप्चर मेथड और ई कंटेंट डेवलपमेंट आपको करना होगा। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 176 है ना, और मेरे YouTube चैनल पर तकरीबन कुल मिला के 199, मतलब आज का और कल का अगर कोई और अपलोड कर दूं तो 200 वीडियोस वहां बन जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं, साथ साथ आपके लिए सबके लिए बने हुए हैं। तो इस तरह का ई कंटेंट आप बना सकते हो। और आज के दौर में हर एक शिक्षक की यह जिम्मेवारी है कि वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो भी विचार है ई कंटेंट के रूप में, पॉडकास्ट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। फिर यह जो ई कंटेंट है, माइंड इट वेल, इट इज अ पायोनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टुडे। ऑलरेडी मैंने कहा है कि तीसरी मतलब जो दशक है, तीसरे दशक में चल रहे हैं हम 21वीं सेंचुरी के। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। यूरोप में और अमेरिका में अगर आप देखें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खासकर एजुकेशन के लिए, तो आप सोचेंगे नहीं इतने आगे दुनिया जा चुकी है, क्योंकि ये चीजें अभी अभी हमारे हाथ में आई है, खासकर कोरोना के दौरान। तो इस तरह के ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डेवलपमेंट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इसका इस्तेमाल करके हमें अपने अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, यूट्यूब या लूम के जरिए से हो या कोई और ई कंटेंट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हो, उस जरिए से हो, वहां पर आपको पहुंचाने होंगे। क्योंकि ई कंटेंट डेवलपमेंट आज के दौर में एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आया है। इसमें डिजाइनिंग है, डिलीवरी है, सिलेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज है, कई सारी चीजों को हम इसमें अंतर्भूत कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल प्रभावी तौर पर करते रहेंगे और टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मतलब एजुकेशन के साथ साथ लेते चलेंगे आगे चलकर, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपके स्टूडेंट्स को और साथ साथ आपको भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि वर्चुअल कैंपस आने के मतलब बस इंडिया में आएंगे ही शॉर्टली, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी जल्दी आ जाएंगे अपने पास। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को ऑलरेडी मौका दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप आए और इंडिया में कैंपस लगाएं। उसी तरह से अब आने वाले वक्त में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, ई कंटेंट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। उसके तहत करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा ई कंटेंट स्वयं के रूप में या स्वयं वीडियो लेक्चर्स के रूप में या फिर स्वयं के और एनपीटीईएल के मूक डेवलपमेंट के रूप में हमारे सामने आया। क्योंकि मूक है क्या? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हजारों लाखों विद्यार्थी
एट ए टाइम किसी एक शिक्षक से जिसने वर्चुअली पूरा प्रोग्राम डेवलप किया है उससे जुड़ जाते हैं, हफ्ते हफ्ते अपने एक्टिविटीज असाइनमेंट करते हैं, और खास तौर पर उसका जो टेन्योर होता है 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, जो भी आपने क्रेडिट का कोर्स लिया है उसके हिसाब से वो टेन्योर होता है, और उसके बाद आप एग्जामिनेशन देते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेशन होता है। मतलब इसको अब लीगलाइज किया गया है, पहले इसको लीगलाइज नहीं किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इनिशिएटिव लेने के बाद बहुत बड़े मतलब पैमाने पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं। आप स्वयं के प्लेटफॉर्म पर जाइए, यहां पर मैं आपके लिए कुछ प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। फिर ये मूक्स के प्लेटफॉर्म, पूरे मूक्स के प्लेटफॉर्म, ईडीएक्स प्लेटफॉर्म है, इलियाडेमी है, कॉर्सेरा है, उडासिटी है, ओपन एजुकेशन है, ओपन एड है। अब ये जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, और मतलब अलग अलग कंट्रीज से उसको डेवलप किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने देश में सैकड़ों कोर्सेज को विकसित किया है। उसमें फिर टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक कोर्सेज को अगर आपको देखना है तो आप एनपीटीईएल की वेबसाइट पे जाइए, यहां पर मैंने आपके लिए वेबसाइट भी दे रखी है। सिंपली गो टू दिस वेबसाइट nptel.ac.in, या फिर आप स्वयं पर जाइए swayam.gov.in। यहां पर आप जाइए, आपको समझ में आएगा कि कई सारे प्रोफेसर्स, कई सारे टीचर्स, फिर वो आईआईटी के हो, आईआईएम के हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, स्टेट यूनिवर्सिटी के हो, या फिर कोई कॉलेजेस के हो, इन प्रोफेसरों ने कई सारे कोर्सेस लॉन्च किए, सैकड़ों कोर्सेस है वहां पर, और आपको उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। सीखने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। सिंपली आप रजिस्टर हो जाइए, उसके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी दिया है वो करते रहिए। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो माफक आपको सिर्फ 1000 रुपए भरने हैं, और उसके साथ साथ कई सारे स्कीम्स भी वहां पर है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो उसको पे बैक करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट पास करता है +70% से तो उसको उसकी फीस वो यूनिवर्सिटी वापस करती है। इस तरह की इनिशिएटिव्स कई सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, यह जो स्वयं है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जिसका एक एब्रिवेटेड एक्रोनिम है स्वयं, वह इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, यह भी एक ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। और अगर आप कोई कोर्स एनपीटीईएल स्वयं से करते हो, आपने 4 क्रेडिट अर्न किए, 8 किए, 16 किए, उस क्रेडिट को आप आपके रेगुलर डिग्री प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हो। ओके, मतलब उतना क्रेडिट अगर आपको वहां पर कम गिरे तो इस क्रेडिट का एडिशन वहां पर करके आप अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम एजुकेशन में कर सकते हैं। चलिए हम, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे जो 50 मिनट का वक्त दिया था ऑलरेडी मैंने ओवरलैप कर दिया है। आई विल ट्राई टू वाइंड अप नाउ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। चलिए समझ लेते हैं कि आईसीटी अगर हमने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली आईसीटी इंप्रूव्स टीचर्स इफेक्टिवनेस एंड एकेडमिक प्रोडक्टिविटी इन द क्लास। याद रहे, जब हम समझ लीजिए आप विज्ञान के टीचर हैं और आपको समझाना है हाउ इज द स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड टेक्स प्लेस। मतलब एक बीज है, जमीन में बोने के बाद उसका स्प्राउटिंग, उसके अंकुर कैसे आते हैं, बताना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर लेकिन आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो स्प्राउटिंग ऑफ ए सैपलिंग, स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड कैन बी शोन देयर वर्चुअल। मतलब इस तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासरूम में करें, मतलब टेक्नोलॉजिकल टूल्स का क्लासरूम में करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, एकेडमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टीचर्स की इफेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि समझाने की शब्दों की क्षमता होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर आधार लिया जाए तो यही समझाने की कला हमें और प्रभावी बना देती है। साथ साथ इट मेक्स डिफिकल्ट करिकुलम इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिलीवर। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो जो भी अभ्यासक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको इजी बनाकर आप स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो। वो डिलीवरी इफेक्टिव होगी, साथ साथ बच्चों को समझने में आसानी होगी। आईसीटी मेक्स द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड जॉयफुल। आपको तो पता है, ऑडियो वीडियो अगर हमारे सामने चलता रहा तो हम जो एनओई या बोर्डम होता है वो नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट्स उसको एंजॉय करते हैं। तो इसको भी हमें वहां पर सोचना होगा। साथ साथ आईसीटी इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बातें इजीली समझ में आ जाएंगी,
उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि माइंड डिविएट नहीं होगा। ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, ग्राफ्स, ग्राफिक्स एंड सो ऑन वहां पर आते रहेंगे तो स्टूडेंट एनग्रॉस हो जाएंगे। इसलिए आईसीटी का प्रभावी इस्तेमाल क्लासरूम में होने की आवश्यकता आ पड़ी है। साथ साथ आईसीटी इनेबल्स लर्नर्स एंड टीचर्स बेटर वेज ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पता है आजकल तो नहीं क्या, मतलब किसी का अगर कोई पर्चा लेना है परीक्षा का तो टीचर उसको लेकर जांच नहीं रहा है, डिजिटली पूरा वो पीडीएफ में कन्वर्ट होता है, डिजिटली टीचर देखता है और डिजिटली टीचर उसे एसेस करता है। रिव्यूज बनते हैं, इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद टीचर और विद्यार्थी दोनों सक्षम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में ही आईसीटी हेल्प स्टूडेंट टू सेट अप एक्टिविटी रूम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी एंड स्किल्स। आपको तो पता है आज का दौर जो है वो प्रोफिशिएंसी का है, आज का दौर है एक्यूरेसी का है, आज का दौर है वो आपके कौशल्य विकास का है। जब तक आप इन चीजों को खुद को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप प्रभावी शिक्षक या प्रभावी विद्यार्थी के रूप में दुनिया के सामने नहीं आएंगे। मतलब कहने का एक ही तात्पर्य है, भले ही वो ऑडियो वीडियो विजुअल्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो, ई बुक्स हो, ई रिसोर्सेस हो, टेक्नो टूल्स हो, कोई भी चीज जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का खासकर इस्तेमाल होता है, उसको अगर हम स्टूडेंट के साथ इंटरैक्शन में इस्तेमाल करें तो हमारी जो मतलब योग्यता है एक शिक्षक के तौर पर शिक्षा देने की और एक विद्यार्थी की योग्यता है एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा लेने की, वह बहुत ही प्रभावी होगी और टेक्नोलॉजी ही हमें आने वाले वक्त में एक प्रभावी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह के अपने इस संबंध के विचार प्रस्तुत करके मैं आपसे मतलब क्षमा चाहूंगा कि वक्त का मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखकर मुझे अपने आइडियाज को वाइंड अप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने की एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया, इसलिए सोनी सर का और पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, पैटर्न्स का, कोऑर्डिनेटर्स का, कन्वेनर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने पूरे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इंटरनेट पर जाकर मतलब इसका सपोर्ट लिया है। आपके सामने पूरे उसके लिंक्स प्रस्तुत है और इसके साथ मैं अपने विचार यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एम आई ऑडिबल सर? यस यस, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत शार्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए रखी। मॉडर्न टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स पे जो आपने सरलता से इस पूरे टॉपिक को समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शंका या कोई डाउट की कोई संभावना आप यहाँ बचती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने ब्रीफ टाइम में शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए आप लेक्चर देने के लिए तैयार हुए, इसके लिए मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। इस पहले लेक्चर में डॉक्टर विट्ठल गोरे सर ने हमें इस बात को स्पष्ट बताया कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग से एक वर्चुअल कैंपस की ओर बढ़ रहे हैं, जो शायद कोविड के टाइम से एक आवश्यकता के रूप में हमारे सामने आया है। यदि हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलते हैं तो शायद हम डेवलपमेंट में कहीं पीछे रह जाएंगे। और कोविड के टाइम पर ही किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि जब पूरा भारत और पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो नहीं रुका। मार्केट बंद हो गए थे, मॉल्स बंद थे, हर जगह केवल घर में कैद रहने की व्यवस्थाएं थी, पर फिर भी एक हमारा एकेडमिक फील्ड ऐसा था जहां इनोवेशंस भी चलते रहे, नॉलेज शेयरिंग भी चलती रही और हम कहीं इसमें रुके नहीं, कहीं हमने अपने आप को पीछे नहीं महसूस किया। और ये शायद इन जो टेक्निक प्लेटफॉर्म्स हैं इनका ही सहयोग था हमारे लिए। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से हम मॉडर्न टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव लर्निंग दे सकते हैं, क्योंकि आज का समय मॉडर्न टेक्निक्स का समय है। आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर निकलता है और हमें एक शिकायत होती है कि बच्चे किताबों से दूर हटने लगे हैं। तो हम उनको किताबों तक तो वापस लाएं, पर हमारी कोशिश ये भी रहे कि बच्चों का इंटरेस्ट, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट जहां पर है
हम उसी प्लेटफॉर्म पर उनको इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे दें कि वो एजुकेशन से जुड़ने पर मजबूर हो जाएं। यही शायद सर ने आईसीटी के इंपॉर्टेंस वाला जो उनकी स्लाइड थी उसमें उनको सर ने शेयर किया। सर ने बताया कि किस तरीके से हम ब्लॉग्स का यूज कर सकते हैं। जनरली अभी तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां अनाप शनाप की बातों के लिए तो टाइम रहता है, पर यदि टीचर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज बच्चों तक अपनी इंफॉर्मेशन या टीचिंग से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए करता है, तो बच्चे के लिए इससे अच्छा टूल कोई हो ही नहीं सकता टीचर से और एजुकेशन से जुड़ने का। यहाँ ब्लॉगिंग के बारे में सर ने बताया, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है कि जो कंटेंट हम बच्चों तक क्लासरूम में शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो ब्लॉग्स के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएं। और टीचर्स के लिए आपने जो स्पेशली अपना खुद का एग्जांपल देके बताया कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में समथिंग अराउंड 195 आपने ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप किए। सर ये वास्तव में हम लोगों को भी प्रेरणा देने वाला एक आपने एक मार्ग दिखाया। डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम भी मूक्स को डेवलप करें, ई कंटेंट को डेवलप करें और एकेडमिक लाइन में हम लोग अपना नाम थोड़ा और आगे ले जा सकें। सर आपने 1 घंटे की इस प्रेजेंटेशन में हमारे लिए कई अपॉर्चुनिटीज, कई विंडोज ओपन की। आपने अपनी नॉलेज से हम लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रदान की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।